Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and just focus toward your studies. As I always suggesting you before starting my video. Today I bring my video in some new way, and I had made this just an open discussion with you all with the NCRT. So I hope, children, you all are studying properly, you are watching the videos. Children, these videos are very important for you all. It is just like the way to interact with you all. It is the medium through which we are making an interaction with you all. We are making classes with you all. So keep watching the videos on a regular basis. So children, uh, we are studying the therapeutic approaches chapter. In this chapter, we have almost completed our this chapter also. In lastly, some of the few topics are left which I am discussing with you in this video. Like the mainly we have discussed about the therapeutic approaches, like what is psychotherapy, that what we have discussed. We have discussed also a different kind of therapy. A very important, children, हम लोग ने बहुत सारे therapies डिस्कस कर लिए हैं. Like you get a knowledge about the psychodynamic therapy. Now after watching the video, if you have seen my video very properly, so I think you get a knowledge that about the psychodynamic therapy. आपने समझा अच्छे से, आपने cognitive therapy अच्छे से समझा, आपने humanistic existential therapy समझा, आपने behavior therapy समझा. We have also discussed about different kind of behavioral techniques. So today in this video I am going to discuss with you some new kind of therapy, I think, which is very much common and very known to you all, which is a biomedical therapy and the most prominent use therapy, and it is most prominent and widely used by each and every therapist, and it is a therapy which is also used by the psychiatrist. Basically they are using it. The other one therapy, except the biomedical therapy like the psychodynamic behavior, they are, it was used by the psychologist, not by the psychiatrist, and not by, okay, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट इन्हें यूज़ करते हैं. बट साइकियाट्रिस्ट जो थेरेपी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, वो साइकियाट्रिस्ट इसका यूज़ करते हैं. डॉक्टर्स है, ये प्योरली मेडिकल थेरेपी है. As it indicated from the name also, biomedical therapy. So the due to the word bio attach, so it's somewhere related to the physiological aspect. बायो वर्ड ऐड हो जाने की वजह से ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें रिलेट हो गया. सो बेसिकली कौन सी थेरेपी है जिसे हम बायोमेडिकल थेरेपी कहते हैं? तो डैट इज़ अ ECT, विच इज़ फुल फॉर्म इज electroconvulsive therapy or the shock therapy. Basically shock therapy. If you see your book, it is given in your book, electroconvulsive therapy, ECT, is another form of biomedical therapy. The mild electric shock is given by electrode to the brain of the patient. सो ECT क्या है जिसे हमने शॉक थेरेपी बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ बायोमेडिकल थेरेपी. माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इज गिवन बाय इलेक्ट्रोड टू द ब्रेन ऑफ द पेशेंट टू इंड्यूस कन्वर्जन. बेसिकली जो पेशेंट का जो ब्रेन होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं और वो एक मशीन से अटैच होता है. समवेयर बॉडी में कन्वर्जन्स के लिए दिया जाता है. This shot is given by the psychiatrist only if it is necessary for the improvement of the patient.
ECT इज़ नॉट एट ऑल अ रूटीन ट्रीटमेंट, ये रूटीन ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चीज़ है जिसको आप डेली बेसिस पे दो. And it is given only when drugs are not effective in controlling the symptoms of the patient. पेशेंट के मतलब कन्वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक किया जाता है, और वो भी तब व्हेन इट वाज नॉट कंट्रोल बाय द मेडिसिन, जब ये मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो पाता तब देते हैं. तो ये भी एक बायोमेडिकल थेरेपी है. बेसिकली हम लोग थेरेपी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो थेरेपी के बारे में आपको सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए. Medicines may be prescribed to treat psychological disorder. Prescription of medicine for treatment of mental disorder is done by qualified medical professional known as psychiatrist. मैंने in the starting, if you have remember, when we are studying the chapter 1 of class 11, I told you that psychiatrists are only allowed to prescribe medicine. Psychologist and the psychologist and the therapist were not allowed to prescribe medicine. They are medical doctor who are specialized in the understanding, diagnosis and treatment of mental disorder. The nature of the disorder, severe mental disorder such as schizophrenia or bipolar disorder require antipsychotic drug. Means basically कुछ disorder ऐसे होते हैं जो कि severe होते हैं, तो उनके लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी हो जाता है. See, some of the disorders are very much critical and very much severe that they are unable to be treated by the medicine, by the therapy. कुछ ऐसे होते हैं जो थेरेपी से ट्रीट नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ती है. यूजली जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं. दे यूजली प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, बट साइकोथेरेपिस्ट और द साइकोलॉजिस्ट, they rarely prescribe medicine. They want to and they try their hard to treat their client on the basis of therapy. Unless until the therapy will not work, then they will prescribe medicine to their client, otherwise not. जब वो काम नहीं करता तब वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज नहीं करते. And when the medicines are also not work, then ECT was provided to the client, and ECT is also one of the form of biomedical therapy. Okay, so this is one of the therapy, biomedical therapy. तो ये बायोमेडिकल थेरेपी आपने समझ लिया. बायोमेडिकल थेरेपी वेयर द पर्सन treat the client, the therapist or the psychologist or you can say the psychiatrist treat the problem of the client, those who are suffering from any kind of psychological disorder, by the help of medicines or by the help of shock therapy. मेडिकेशन जो भी दिए जाते हैं इज़ गिवन अंडर सुपरविजन. ओके, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं यूज टू स्टे अवे टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन आर टू गेट अ हाई एट अ पार्टी हैव डेंजरस साइड इफेक्ट. दीज ड्रग्स कैन कॉज एडिक्शन एंड हार्म द ब्रेन एंड द बॉडी. therefore it is dangerous to self medicate with drugs which affect the mind. ऑब्वियसली ड्रग्स जितने भी सब्सटेंस होते हैं they are harmful for your body as well as for your mind. So it is always suggested कि you should not take the drugs medicine without a supervision or without prescription of the doctor. उनके प्रिस्क्राइब किए बिना आप अपने मन से कुछ भी दवाइयाँ मत लीजिए. इनका बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बैड इफ़ेक्ट्स हो सकता है.
So this is about the biomedical therapy. Sometimes some of the problems are not cured on the basis of behavior therapy, CBT, RET, and cytodynamic humanistic essential. So it becomes essential for the therapist to prescribe them medicine and to treat the psychological problem of the client. सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोमेडिकल थेरेपी और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लोगे एग्ज़ाम में कि बायोमेडिकल थेरेपी क्या होती है, किस कंडीशन में ये प्रोवाइड होती है, ईसीटी क्या होती है. इट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ बायोमेडिकल थेरेपी. व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन ईसीटी में क्या करते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट. Now the next topic which we have to discuss in this particular chapter is factors contributing to healing in psychotherapy. Very important and interesting point. Factor contributing to healing in psychotherapy. Factors contributing mean ऐसे कौन से factor हैं जो कि contribute करते हैं. contribute करने का मतलब उनकी importance है, उनकी value है आपके psychotherapy की healing में. मतलब आपके साइकोथेरेपी को बेस्ट करने के लिए, आपके साइकोथेरेपी जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट को, वो अच्छे से ट्रीट हो जाए. तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि उसकी हेल्प करते. कंट्रीब्यूट करना एक तरह से समझ लीजिए उसकी हेल्प करना, मदद करना. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मेनली 4 फैक्टर्स आर डिस्कस्ड ओवर हियर. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द बोर्ड एग्ज़ाम चिल्ड्रन. बोर्ड एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द फैक्टर. सो डोंट इग्नोर इट एंड डोंट कंसिडर इट एज अ लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक देन एनी अदर टॉपिक. ये मत समझिएगा कि ये टॉपिक बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट होगा. हमें बड़े बड़े टॉपिक पे ही ध्यान देना है, साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर, कॉग्निटिव. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो एवरी टॉपिक आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पूरी तरह से सभी पे फोकस करेंगे, इक्वल फोकस देंगे. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी. क्या फैक्टर हैं जिससे कि हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है. क्या हो सकता है. व्हाट यू कैन गेस. द फर्स्ट मेजर फैक्टर इन द हीलिंग इन द टेक्निक adopted by the therapist and the implementation of the same with the patient and client. If the behavioral system and the CBT school are adopted to heal an anxious client, the relaxation procedure and the cognitive restructuring largely contribute to the healing. So सबसे बड़ा फैक्टर होता है साइकोथेरेपी में हीलिंग का कि आप किस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, किस डिसऑर्डर के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. To choose a technique for a particular disorder is also playing a very important role in healing in psychotherapy. कौन सा टेक्निक कितना इफेक्टिव है ये भी बहुत मदद करता है आपके हीलिंग को. सेकेंड है थेरापेटिक अलायंस. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हीलिंग इन साइकोथेरेपी. Therapeutic alliance means a relationship between the therapist and the client. ये भी बहुत important role play करता है. If the client do not have the trust on the therapist, if the client will not feel comfortable with the therapist, if the client will, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो client will not be able to share his or her feeling, his or her problem. वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो एक अच्छी हीलिंग के लिए, फॉर अ गुड हीलिंग, अ गुड थेरापेटिक अलायंस इज मस्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर. At the outset of the therapy, while the patient and client is being interviewed in the initial sessions to understand the nature of the problem, he or she unburden the emotional problem being faced. This process of emotional burdening is known as catharsis. Catharsis डेवलप होना बहुत ज़रूरी है साइकोथेरेपी के प्रोसेस में. ये भी एक फैक्टर है जो कि मदद करता है हीलिंग में. कैथारसिस मीन्स इमोशनल अनबर्डनिंग.
उसको कैथारसिस कहते हैं। इमोशनल अनबर्डनिंग मीन्स जब क्लाइंट का जो इमोशन लेवल है वो धीरे 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 नॉर्मल रेंज पे आता है। इमोशंस आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो क्लाइंट होते हैं दे डू द ओवर थिंकिंग, दे आर बाउंडेड विथ सो मैनी काइंड ऑफ इमोशन। उनके में इमोशंस भी आप देखेंगे बहुत हाई लेवल। इफ़ दे शो द एंगर इट वॉज वेरी मच हाई, इफ़ दे शो इफ़ दे ट्राई सो दे ट्राई वेरी पैनिकली, तो एवरीथिंग वॉज इन अ हाई रेंज। तो इमोशनल को उनके अनबर्डन करना ये भी एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। नाउ देर आर सेवरल नॉन स्पेसिफिक फैक्टर एसोसिएटेड विथ साइकोथेरेपी। ये सारे जो हमने अभी पढ़े ये आप स्पेसिफिक फैक्टर में रख सकते हैं। सो फैक्टर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं साइकोथेरेपी में, स्पेसिफिक फैक्टर एंड नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। मैं अगेन आज इस वीडियो में क्या टॉपिक डिस्कस किया आपसे डिस्कस कर रही हूँ फिर से। बायोमेडिकल थेरेपी हमने समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। Still, if you find any doubt anywhere, okay, you can ask me, you can message me, you can call me to understand this one. This is one thing. फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि द टेक्निक चूजन बाय द थेरापिस्ट दैट आल्सो मैटर, थेरापेटिक अलायंस आल्सो मैटर, मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द थेरापिस्ट एंड द क्लाइंट। थर्डली, इमोशनल अनबर्डनिंग यानी कैथारसिस होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, इन ये सारे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर थे, बट इनके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर भी हैं। क्या हैं? There are several non-specific factors associated with psychotherapy. Some of these factors are attributed to the patient or client and some to the therapist. These factors are called non-specific because they occur across different systems of psychotherapy and across different client or patient and different therapist. Non-specific factor attributable to the client or patient are motivation. ये सारे non-specific factor हैं। फिर से हम पढ़ेंगे से ये कहना ये चाह रहा है देर आर सेवरल नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर एट्रीब्यूटेड टू द पेशेंट और क्लाइंट एंड सम टू द थेरेपिस्ट। ओके, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर जो हैं कुछ पेशेंट से रिलेटेड हैं, कुछ थेरेपिस्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी या डिफरेंट क्लाइंट पेशेंट के जिससे हम चलिए हम लोग जानते हैं कि नॉन स्पेसिफिक फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जैसे नॉन स्पेसिफिक फैक्टर क्लाइंट के क्या हो सकते हैं, प्लीज़ चिल्ड्रेन यू शुड नोट इट डाउन। आप इसे नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में भी वाइल वॉचिंग द वीडियो, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। मैं फिर से बता रही हूँ फैक्टर्स क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट, टेक्निक विच आर चूजन बाय द थेरेपिस्ट एंड catharsis, emotional unburdening and the therapeutic alliance. ये the solid points are there which you should keep it in your mind. And now these are specific factor. नॉन स्पेसिफिक फैक्टर कुछ थेरापिस्ट के होंगे और कुछ क्लाइंट के होंगे। जैसे क्लाइंट का क्या होगा, पॉइंट सबसे पहला है मोटिवेशन फॉर चेंज, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम उसको ही बदल सकते हैं जो बदलना चाहता है। जो बदलना नहीं चाहता, जो इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता, हम उसको नहीं बदल सकते। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट दैट दे शुड हैव अ मोटिवेशन टू बी ट्रीटेड। उनके में ये हो कि वो ठीक होना चाहते हों, देयर शुड बी अ मोटिवेशन फॉर चेंज। सेकेंड, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द ट्रीटमेंट की वजह से उनमें एक्सपेक्टेशन भी हो। जैसे कई मतलब ट्रीटमेंट से उनको एक्सपेक्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अदरवाइज़ वो क्या होगा, उनको लगेगा अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो उनको होगा कि ओके इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्प मी आउट, ये कहीं से भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। सो चिल्ड्रन, क्लाइंट के पार्ट पे मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट को, और एक्सपेक्टेशन होना उसका बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सपेक्ट करे, उसकी एक्सपेक्टेशन हो ट्रीटमेंट से, थेरापिस्ट से। देयर शुड बी अ होप दैट आई विल रिकवर समडे, आई विल बी रिकवर्ड। देन ये सारे जो
पेशेंट के पार्ट के नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, क्लाइंट और पेशेंट के पार्ट के, हम इन्हें पेशेंट वेरिएबल कहते हैं। कुछ इस नॉन स्पेसिफिक फैक्टर थेरापिस्ट के भी पार्ट्स के होते हैं, जिन्हें हम थेरापिस्ट वेरिएबल कहते हैं। सी, इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको बहुत से ऐसे टर्म्स मिलेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे केम इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, लाइक कैथारसिस, नोट डाउन इट. Second word is patient variable, therapist variable. So sometime it is our what is patient variable. So you should define the non-specific factor which are contributing to healing in psychotherapy on the part of the client and the patient are known as patient variable, like expectation, motivation for change. Similarly, the non-specific factor on the part of the therapist which contribute to healing in psychotherapy are known as therapist variable, such as positive nature of the therapist, very important. अगर थेरापिस्ट पॉजिटिव नहीं हो रहा, मीन्स बेसिकली जो ट्रीट कर रहा है वो खुद नेगेटिव है, तो हाउ द पर्सन विल टीच टू अदर वन टू बी पॉजिटिव, अ बिग क्वेश्चन. तो पॉजिटिव नेचर उसका होना चाहिए. एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, उसके में कोई भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एब्सेंस हो. प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारे कुछ थेरापिस्ट के वेरिएबल हैं, थेरापिस्ट के नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हैं विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी. सो द टू टॉपिक्स वी हैव डिस्कस चिल्ड्रन विद योर बुक. सो आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. ओके, so we understand about the patient variable, we understand about the therapist variable. Okay, fine. Now you can see on the your screen the next topic which we have to discuss is very again important, ethics in psychotherapy. Yes children, everywhere this particular word we have to follow, ethic. Either you are doing any kind of research, either you are conducting a practical, either you are doing any kind of observation, every time those who came into your contact, like it can be your subject, it can be your research participant, it can be your client, everywhere some of the ethics are there which you have to be consider, which you have to keep in mind. So यहाँ भी हमारे कुछ ethics हैं जिन्हें हम समझेंगे. सबसे पहला है, the first point you can see on the screen is informed consent need to be taken, a very important point. आपने देखा होगा even those who are biological doctor also, when they are going to operate, so they take a consent from the patient as well as their family member. So similarly, here also we will take a consent, informed consent, yani you provide all the necessary detail and information to the client. सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आप जो हैं वो क्लाइंट को आप देते हैं कि, और नॉट ओनली टू द क्लाइंट बट ऑल्सो टू द क्लाइंट फैमिली मेम्बर, क्लाइंट के फैमिली के मेंबर्स को भी आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन देते हो. नाउ नेक्स्ट, confidentiality of the client should be maintained. Whatever the information the client is sharing with you, it is a very priority for you all to not to share it with anyone. Third,
Alleviating personal de-stress and suffering should be the goal of all attempts of the therapist. क्लाइंट के पर्सनल डी स्ट्रेस और सफरिंग को एलिविएट करना ये भी आपका एथिक है साइकोथेरेपी का। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, इन्फॉर्म कंसेंट करना और उसके डी स्ट्रेस को एलिविएट करना, निकालना, रिमूव करना। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी आप हम हर एक तरीके से मेंटेन करते हैं। एज यू ऑल नो, इट इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ not personal, it is purely professional. So in terms of professional, you have to maintain the integrity. There should be a professional relationship between the therapist and the client. So in that condition, an integrity should be maintained. रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस स्किल्स आर एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ द थेरापिस्ट। थेरापिस्ट को ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट हैं साइकोथेरेपी के एथिक्स में आते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर द थिंग्स विच कम अंडर द एथिक्स इन साइकोथेरेपी? Informed consent, confidentiality, integrity, respect and dignity, elevating personal de-stress and professional competence and skill. So just a quick review of the 3 topics which we have discussed in this video. Biomedical therapy, factors contributing to healing in psychotherapy. There were 2 factors, specific and non-specific. Then ethics in psychotherapy. Just quickly do a revision. So here we are almost on the end of this chapter. Now lastly, the 2 topics are left in this chapter which you can see on the screen. The first one is alternative therapy and next one is rehabilitation of the mentally ill. It is again a very important topic, children. अल्टरनेटिव थेरेपी से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं। जस्ट लाइक द क्वेश्चन वर आस्क्ड, व्हाट आर द अल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर ट्रीटिंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अल्टरनेटिव थेरेपी से आप क्या समझते हैं? अल्टरनेटिव यानी इन सब के अलावा और क्या है, मतलब क्या सिर्फ एक ही मोड है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर को ट्रीट करने का? क्या हम लोग सिर्फ मेडिसिन से या थेरापी से ही इसको ट्रीट कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है? देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन। सो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। देयर सम अल्टरनेटिव थेरेपीज ऑल्सो, जस्ट लाइक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, ये भी हैं जिनके थ्रू हम लोग बहुत से प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जो प्रॉब्लम माइल्ड है, लाइक एंजाइटी है, किसी को फोबिया है, ये सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। ठीक है, जैसे ओसीडी के लिए, पीटीएसडी के लिए एसकेवाई बहुत यूज़ होता है। एसकेवाई सुदर्शन क्रिया योगा है। ठीक है, और ओसीडी के लिए आई थिंक कुंडलिनी योगा है। कुंडलिनी योगा ओसीडी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस थेरेपी में आप अल्टरनेटिव थेरेपी में योगा के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्टाई, इसको शॉर्ट में हम लोग स्टाई बोलते हैं, स्टाई के बारे में पढ़ेंगे आप। कुंडलिनी योगा के बारे में पढ़ेंगे, अष्टांग योगा के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ दी समवेयर आई थिंक थोड़े बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होंगे अबाउट द योगा, अबाउट योर योगा सूत्रज, पतंजलि, ये सारी इन्फॉर्मेशन, प्राणायाम के बारे में तो आप सभी को पता होगा। तो ये चीज़ें बेनिफिट्स देती हैं। दे कीप आवर बॉडी एंड माइंड काम एंड रिलैक्स। सो ये थेरेपीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ दी मेंटली इल। सो इस वीडियो में मैं ये दोनों टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूँ।
So in the next video we will discuss it in detail and some of the more things to be included. I try to give you the more additional information also related to the alternative therapies. सो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं. अप टू दिस वन यू शुड डू द रिवीजन कर लेंगे और आई होप यू ऑल आर डूइंग द रिवीजन. सो जस्ट थैंक you so much for carefully listening to me and observing this video. Thank you so much.